آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الانبیاء احیاؤن فی قبورہم یصلون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور آگے فرمایا یصلون، صرف زندہ ہی نہیں بلکہ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب پہلے آپ اس کی وضاحت، اس کے حوالہ جات دیکھیں۔ یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، الخصائص الکبریٰ میں ہے، مشکات المصابیح کے اندر ہے، فتح الباری میں ہے، معجم الاوسط میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، اور یہی حدیث مبارکہ مسند بزاز کے اندر ہے، اور یہی حدیث مبارکہ الاحادیث الصحیحہ اس کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ تقریباً بے شمار حدیث کی کتابیں، بہت حدیث کی کتابیں جن کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے متعلق جمی ائمہ نے، جمی محدثین نے گفتگو کی، بحث کی، اور بحث کرنے کے بعد سب نے یہی کہا کہ اس حدیث کے جتنے بھی اسناد ہیں، اسنادہ صحیح، کہیں صحیح کہا، کہیں حسن صحیح کہا، یعنی سب نے کہا کہ اس کی سند بھی صحیح ہے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف نہیں ہے بلکہ اس کے تمام راوی ثقہ بھی ہیں اور تمام راوی صحیح بھی ہیں۔ اب سنیے حدیث مبارکہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، وَيُصَلُّونَ، اور نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ، اور یہ بھی بے شمار احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، متفق علیہ حدیث مبارکہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا، ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے، وہ چند لمحہ یا چند عرصہ یا کچھ سال وہ قبر کے اندر رہتا ہے، جب بعد میں قبر کوئی حادثہ ہو جائے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کا کفن ختم ہو جاتا ہے، انسان کا جو جسم کے چند ایک اعضاء ہیں جو باقی رہتے ہیں، اور وہ بھی بالکل جو آنکھ میں ذرہ پڑتا ہے اس سے بھی باریک ہوتے ہیں، وہ اعضاء باقی رہتے ہیں۔ باقی انسان کی ہڈیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، انسان کا جسم بالکل ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل کپڑا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک طرف عام آدمی ہے اور دوسری طرف اللہ کا ولی ہے یا اللہ کا نبی ہے، انبیاء کرام ہیں، تو انبیاء کرام کا عالم یہ ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام کر دیا۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے جتنے انبیاء ہیں وہ سارے قبروں میں زندہ بھی ہیں، اللہ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ پہلی حدیث کے اندر فرمایا یصلون، وہ اپنی قبروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ سارے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی دیتا ہے، ان کا جسم کھانا تو دور کی بات ہے، ان کا جو مزار اقدس کے اندر ان کا جو جسم ساتھ میں جو کفن لگایا ہے وہ کفن آج صبح قیامت تک میلا نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء کرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خدا کا پیارا ہے، خدا کا مقرب ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है, लोहो कलम को मुस्तफ़ा के लिए बनाया है, अर्श व फर्श को मुस्तफ़ा के लिए बनाया है। अब सारी कायनात जिस नबी के लिए बनाई गई उसके लिए ये अकीदा इंसान रख दे कि माज़अल्लाह वो मर के मिट्टी में मिल चुके या ख़त्म हो चुके या वो हमारी पुकार नहीं सुनते, तो फिर जब हम कहते हैं या रसूल अल्लाह और हम जब कहते हैं अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो, आप पर दुरूद हो, तो फिर ये सारा हमारा लग़व जाएगा। तो नतीजा ये निकला अल्लाह ने सारा कुछ मुस्तफ़ा के लिए बनाया है और मुस्तफ़ा जाने रहमत विलादत से पहले भी जिंदा थे और विसाल के बाद आज भी जिंदा हैं, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। सरकार अलैहिस्सलाम, अब इस पर दलील क्या है? आप पहली दलील समाअत करें कि अंबियाए किराम अपनी कब्रों के अंदर जिंदा हैं और नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप जिंदा हैं, तो आपकी ज़िंदगी पर पहली दलील, और ये हदीस मुबारका बेशुमार हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है, शोअबुल ईमान के अंदर भी मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया, कि कोई भी आदमी मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता है, मेरे ऊपर सलाम पढ़ता है, तो फरिश्ते उसके दुरूद को ले करके उसके सलाम को ले करके मेरी बारगाह के अंदर पेश करते हैं। और आका इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई आदमी मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता है, मेरे ऊपर सलाम पढ़ता है, तो फरद्दा अलैया रूही, अल्लाह तबारक व तआला मेरी रूह को मेरे जिस्म के अंदर लौटा देता है। और आगे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं उसके दुरूद को सुनता हूँ, उसके सलाम को सुनता हूँ और उसको जवाब भी अता करता हूँ। अब आप रुक करके एक बात को समझो और इसके ऊपर गौर करो। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई आदमी मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता है, मेरे ऊपर सलाम पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटा देता है और जब वो दुरूद पढ़ना बंद हो जाता है तो रूह को निकाल दिया जाता है। अब आप इस हदीस को ज़हन में रख करके ज़रा सोचो, हम यहाँ फजर की नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ फजर का टाइम है, किसी जगह ज़ोहर का टाइम होता है, किसी जगह असर का टाइम होता है, किसी जगह मगरिब का टाइम है और किसी जगह इशा का टाइम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम मंडी के अंदर जोहर की नमाज पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया इसी टाइम जोहर की नमाज पढ़ रही होगी, ऐसा नहीं है। कहीं जोहर है, कहीं असर है, कहीं मगरिब है, कहीं इशा है। और फिर अगला जुमला सुनिए, जब भी इंसान नमाज पढ़ता है तो नमाज के अंदर एक जुमला पढ़ता है और वो जुमला कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो। जब इंसान ये कहता है या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, है हमारे आका आप पर सलाम हो, तो एक इंसान जोहर की नमाज पढ़ता है। मसलन यहीं की मिसाल ले लें आप, हम 2 बजे जोहर की नमाज पढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद एक आदमी और आता है वो पढ़ लेता है, फिर बाद में पढ़ता रहता है। ये नहीं, जोहर का टाइम आप जब तक देखेंगे तो किसी ना किसी जगह, किसी ना किसी महल्ले के अंदर, बस्ती के अंदर ऐसा आदमी होगा कि कोई ना कोई जोहर की नमाज पढ़ता होगा। बहरहाल यानी पूरी दुनिया के अंदर अगर आप नमाज का सिलसिला देखें तो 24 घंटे बराबर लोग नमाज के अंदर होते हैं। कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई अत्ताहियात में है, कोई दुरूदो सलाम के अंदर है। तो पता ये चला कि पूरी कायनात के अंदर एक लम्हा आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस लम्हा के अंदर नमाज ना पढ़ी जाती हो और दुरूद ना पढ़ा जाता हो। तो अब नतीजा ये निकला कि जब अल्लाह तबारक व तआला आपकी रूह को, हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह को उनके जिस्म में लौटा देता है, जब बंदे दुरूद पढ़ते हैं, तो मतलब ये हुआ कि एक लम्हा भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस लम्हा के अंदर मुस्तफ़ा पर दुरूद ना पढ़ा जाता हो। फिर इस पर दूसरी दलील भी आप सुन ले। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, अच्छा चलो अगर यही बात मान ली जाए कि कुछ लम्हा के लिए लोग मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ते हैं और कुछ लम्हा के लिए दुरूद बंद कर दिया जाता है, और जिस लम्हा दुरूद बंद होता है उस लम्हा सरकार अलैहिस्सलाम की रूह को जिस्म से लौटा दिया जाता है। अगर आप ही की इसी बात को मान लिया जाए तो इसके मुकाबले में दूसरी हदीस मुबारक है। आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरे मज़ार अक़दस के ऊपर 70,000 फरिश्ते हैं जो शाम के वक्त आते हैं, सुबह तक दुरूद पढ़ते हैं, और 70,000 वो हैं जो सुबह के वक्त आते हैं, शाम को दुरूद पढ़ते हैं, जो एक बार आ जाते हैं, क़यामत तक उनकी बारी नहीं आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी,
अब इन सारी हदीस और दलाइल की रोशनी में मालूम ये हुआ कि नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके ऊपर एक लम्हा ऐसा नहीं आता, एक मिनट ऐसा नहीं आता, एक सेकंड ऐसा नहीं आता कि जिस लम्हा के अंदर मुस्तफ़ा पर दुरूद ना पढ़ा जाता हो। और आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरे ऊपर दुरूद पढ़ा जाता है तब रूह को लौटा दिया जाता है, मेरे जिस्म में डाल दिया जाता है, और जब दुरूद बंद हो जाता है तो मतलब ये हुआ रूह निकाल दी जाती है। तो फिर एक लम्हा भी ऐसा नहीं जिस लम्हा पर मुस्तफ़ा पर दुरूद ना पढ़ा जाए। अब नतीजा ये निकला, मुस्तफ़ा कल भी जिंदा है, मुस्तफ़ा आज भी जिंदा है, मुस्तफ़ा सुबह क़यामत तक जिंदा है। और दूसरी हदीस मुबारका, और ये भी सब मुत्तफ़क़ अलैह और हदीस की बड़ी बड़ी किताबों के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि जब कोई आदमी मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता है, मेरे ऊपर सलाम पढ़ता है, तो सरकार अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको हयात अता फरमाई है, जो ज़िंदगी अता फरमाई है, तो आपकी ज़िंदगी का आलम यह है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं कि कोई भी आदमी किसी जगह से, किसी महल्ले से, किसी बस्ती से, किसी कबीले का, किसी ज़ुबान, जिस ज़ुबान के ऊपर भी, जिस ज़ुबान के अंदर भी मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता है, तो अगर वो दिल से पढ़ेगा, अकीदत से पढ़ेगा, मोहब्बत से पढ़ेगा, तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फसमीअ सौतहू, मैं उसकी आवाज़ को भी सुन लेता हूँ।